Hello friends, welcome back to our channel. So today we will start the data variables in Java and data types in Java, and then we will see the operators in Java. So we can select this folder. We can create the new project project as a Java. Then next, here we can type our project name, just like I'm typing here my project. Then next, and we can finish it. So here our project is created. Then you can click here. So SRC folder you can see them. Then right click on this SRC folder, create a new package of class. So I am create here the new package. The package name is first. I am here already created. Then you can here type next, finish it. So you can see here the package name is created. Then double click on, you can see here the all the programs you can run it. So you can click here, select class name. जो हम क्लास जो हम फाइल को नेम देगी वो नेम ऑलरेडी एज डिफाइन होके क्लास का नेम आ जाएगा. सो S1 हम S1 टाइप करेंगे सिर्फ. देखिए न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया. S1 जो हमने फाइल को नेम दिया था वो बाय डिफॉल्ट हमारे क्लास का नेम आ जाएगा. तो हम देखते हैं वेरिएबल. What is the variable? Variable in the name of the memory location. In other words, we can see the user defined which the given by the user's name. They can the variable is assigned with the data types. There are three types of variable in Java: local variable, instance variable, and static variable. So firstly, we can see the local variable. Local variable is declared inside the body of the method is called the local variable. Which body? The public static void main is the part of the body. The class, here we can declare the instance variable, but we can see here the local variable, so we can declare the local variable inside the body class. The local variable is not define the static keyword. So integer data type, we can e is the variable, so assign the value. Again integer variable equals to 20. Then we can store the addition of variable 1 and 2. मतलब a and b के एडिशन हम स्टोर करेंगे c वेरिएबल में. तो हम एक प्रिंट करने के लिए एक हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू पास करेंगे c. तो हमें c के एडिशन ए हो गया हमारा लोकल वेरिएबल. तो नेक्स्ट है इंस्टेंस वेरिएबल. तो हमने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल में पब्लिकली जो वेरिएबल डिफाइन किए हैं. तो instance variable, the variable declared inside the class but outside the body of the method is called the instance variable.
The instance variable is not declared as a static. So हमने देखिए यहाँ पे जो name is a variable is defined outside the method but inside the class. This is the class. So हमने क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन किए हैं। तो हमारा मेन फंक्शन है यहाँ पे देखिए, ए हो गया हमारा बॉडी पार्ट, तो हमने इसके बाहर डिफाइन किया है तो इसकी वजह से ए हो गया हमारा इंस्टेंस वेरिएबल। तो हमें इसको असाइन करने के लिए हमें कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में हमें इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग इज द इंस्टेंस वेरिएबल। यहाँ पे हमने डिफाइन किया नेम को हमने वैल्यू पास की जो हमने कंस्ट्रक्टर में पास की। यहाँ पे सेट डेटा, सेट डिवीजन, मतलब हमने यहाँ पे डिवीजन को हमने वैल्यू सेट करने के लिए यहाँ पे सेट डिवीजन लिया है। उसके बाद सेट एज उसको डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे वॉइड सेट एज लिया है। पब्लिक का मतलब होता है पब्लिक स्पेसिफायर इज यूज्ड फॉर द इजीली एक्सेसिबल इन द फॉलोइंग मेथड्स। हमने these all methods are defined as a public methods, so easily you can access in the main functions। ये देखिए हमारा मेन बॉडी पार्ट्स आ गया। यहाँ पे हमने क्लास वेरिएबल इंस्टेंस वी इज द क्लास नेम, हमारा जो क्लास नेम है उसका हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करवा है। ये वी इज द हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम यहाँ पे वी की जगह हम एनी वेरिएबल्स यू कैन असाइन एज अ ऑब्जेक्ट। क्लास नेम, ऑब्जेक्ट, न्यू एंड क्लास नेम, हम यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे। जो हमने कंस्ट्रक्टर लिया है इसकी वजह से हमें यहाँ पे वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो हमने जो स्टूडेंट्स नेम है उसकी हमने वैल्यू पास की है एज अ मोनाली। हम यहाँ पे एज यूजर डिफाइन, हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं एज निकिता। देन वी इज द वेरिएबल, वी इज द ऑब्जेक्ट डॉट सेट एज, मतलब एज सेट हो जाएगी किसको, स्टूडेंट की एज को। हम यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगी। देन सेट डिवीजन, उसका डिवीजन भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और फाइनली ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट स्टूडेंट, हमने जो स्टूडेंट को जो प्रिंट स्टूडेंट इज द पब्लिक वॉइड स्टूडेंट, ये मेथड है, हमने इस मेथड को कॉल किया है। इस मेथड के अंदर हमने प्रिंट फंक्शन डिफाइन किया है, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट डिवीजन एंड स्टूडेंट एज, वो इसकी वैल्यू पास करेगा। देखिए स्टूडेंट नेम एज निकिता, स्टूडेंट डिवीजन एज ए एंड स्टूडेंट एज इज 20। तो हम जो हम यहाँ पे पास करेंगे वैल्यू वो वहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगी। एज इज मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, निकिता की जगह फिर से एक बार रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, नेम अंजलि, डिवीजन बी एंड उसकी एज हो गई 25। The next is static variable, जैसे एक सेलेक्ट न्यू क्लास 5, यहाँ पे क्लास का नाम देंगे। अगर हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये हमारे जो मेथड है वो हमें नहीं मिलेगी। इसका मतलब हमें खुद से टाइप करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ये हमारा है स्टैटिक वेरिएबल। Static variable which is declared as a static is called the static variable. It cannot be local. You can create a single copy of static variable and share among all the instance of the class. The memory allocation of the static variable is happen only once. मतलब हम एक बार static variable define करेंगे तो उसकी वो जो डेटा स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी स्टोर नहीं करेगा। एक बार हमने असाइन किया तो उसको मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, फिर से वो एक बार मेमोरी असाइन नहीं करेगा। तो देखिए हम इसे ग्लोबली असाइन करेंगे।
integer data types. What's static? हम यहाँ को यम को भी प्रिंट करेंगे। ये देखिए यम की भी वैल्यू प्रिंट हो गई और यम की भी, तो यम को हमने इंस्टेंस वेरिएबल एज डिक्लेयर किया है, तो यम की वैल्यू हमने लोकल वेरिएबल ली है, तो ये लोकल की तरह प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमने जो इंस्टेंस वेरिएबल में प्रिंट किया है डेटा, अब हम डेटा को प्रिंट करके देखते हैं डेटा प्रिंट होता है क्या। ये देखिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे एरर आ रहा है, बिकॉज द डेटा इंटीजर डेटा इज द लोक इंस्टेंस वेरिएबल जो कि हम एक्सेस नहीं कर सकते इजीली, इसके लिए हमें यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफायर क्रिएट करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई हमने जो हमें अगर एक्सेस करना है इंस्टेंस वेरिएबल को, तो हम उसे स्टैटिक करके डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डेटा टाइप्स। व्हाट इज द डेटा टाइप्स इन जावा? Data types specify the different sizes and values that can be stored in the variable. There are two types of data types: primitive data types and non-primitive data types. Primitive में भी दो types है, numeric and non-numeric. So the numeric data and non-numeric. Numeric में define किया है integer, float value. तो integer में है byte, short, int, long, and float में है float and double. The numeric में है character और boolean. Boolean is the data which can be which is the primitive data types, and it can be easily give the value in the only one form as well as the true and it's and false. Non-primitive data types. Non-primitive data types are array, string, and object. Non-primitive data types is the user-defined data types. Strings are defined as an array of the characters. Array is a group of like a type variable that can refer the common names. Array in Java differently than they do in a C++. तो for पहले डेटा टाइप होते हैं इंटीजर, I equals to 50. Char is the character defined. It can be defined only in the single quote and double quote. Can type here unique characters. Right.
सब वैल्यू को प्रिंट करते हैं। इंटीजर की वैल्यू हमने 50 पास की थी, तो यहाँ पे आ गई 50, कैरेक्टर आ गया, अभी बाइट्स आ गया, एज इट इज जो हमने टाइप किया था वो प्रिंट हो गया। अगर हम फ्लोट की वैल्यू यहाँ पे एफ नहीं डालेंगे लास्ट में, तो यहाँ पे एरर शो करेगा। इसके लिए हमें फ्लोट वैल्यू, हम जो भी फ्लोट वैल्यू टाइप करेंगे उसके एंड में हमें एफ प्रिंट करना है, क्योंकि हम यहाँ पे एफ डालेंगे तो एज इट इज वो फ्लोट वैल्यू प्रिंट करेगा।